Hello everyone, welcome on to my YouTube channel GS Darpan. In today's class, we will discuss about how you can prepare geography optional. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर जियोग्राफी ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर किया जाए. So in today's class, I'll discuss how to prepare geography optional. Why this optional is beneficial is it is one of the best optional subject, and how to make the notes, how to study this subject, what should be the approach, what should be the right concrete approach, because optional subject का syllabus बहुत vast होता है. So how you can prepare this subject that at the last movement when your mains examination is around the corner, you can revise the whole notes. So I'll tell you and show you the note making strategy also, and I'll tell you how this channel is going to help you while your preparation for geography optional. So moving ahead, this is me, your GS mentor Pavan Singh. I am geography and environment faculty. So first we will talk about why you should opt for geography optional. There are various optional subjects, but this subject, geography, is one such subject is going to enhance your skill in a multiple way. केवल अभी प्रिपरेशन के फेज में नहीं, but when you go to the services, let's suppose you become the IAS officer, you are from Haryana or Punjab and you get cadre in the southern part of India. So let's suppose you go to Tamil Nadu. When you study this subject, you will be aware about completely the physical geography, climatology of Tamil Nadu, agriculture, demographic structure. You'll be aware of a hell lot of things about the Tamil Nadu already. So this optional will not only enhance your knowledge base, but it will give you the overview of the world. आप कहीं किसी भी जगह के लिए आप अनअवेयर नहीं रहेंगे. योर माइंड विल नॉट गो इन ब्लैंक कि यहाँ के बारे में मैं कुछ नहीं जानता. So first of, geography as an optional subject is one of the most preferred subject. So many students, especially the students who are coming from engineering background, they prefer this subject because this subject also have the scientific touch. Now, geography as a subject, we can see GS में एक बहुत बड़ा coverage है इसका. Like in geography optional subject, you study the whole geography thing, then you study the agriculture, you study environmental geography, you study economic geography. So there are so many things you cover that only this one particular subject is going to cover your almost 30% section of all the GS papers, GS paper 1, 2, 3. So by understanding geography, you will better understand the history also, because history कि जो इंसिडेंट्स हैं वो जियोग्राफिकल सेटअप पर ही डेवलप होती हैं. सो जियोग्राफी एज एन सब्जेक्ट विल हेल्प यू टू conquer maximum part of your GS papers. So geography as an optional subject is high scoring. I'm not going to show you any data. There are various numbers of data is given. आप देख सकते हैं कि एक अच्छा स्कोर जियोग्राफी में मिलता है. बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी आप देख सकते हैं, उनके मार्क्स आप देख सकते हैं, नेट पर अवेलेबल हैं. तो जियोग्राफी एक हाई स्कोरिंग है, स्पेशली फॉर दोज हु आर कमिंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. उनके लिए सब्जेक्ट बहुत हाई स्कोरिंग हो जाता है बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ अप्रोच टू स्टडी अ सब्जेक्ट. जियोग्राफी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट देखेंगे तो काफी नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें अपेयर होते हैं. सो इसका फायदा ये होता है कि जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो कभी भी इसके मटेरियल की कमी नहीं रहेगी.
बहुत सारे लोग आपको मेंटर गाइड करने के लिए भी मिल जाएंगे, बहुत सारी नोट्स मिल जाएगी, मटेरियल मिल जाएगा। तो मटेरियल की कोई कमी नहीं रहती है और कैंडिडेट्स की भी कोई कमी नहीं रहती, हु ऑलरेडी हैव गिवन द मेंस, आप उनसे भी मिल करके गाइडेंस ले सकते हैं। सो जियोग्राफी हैज रिटर्न मार्क्स ऑलमोस्ट 400 मार्क्स, आईएएस मेंस में इसमें हाईएस्ट आए हुए हैं। तो वी कैन सी दिस इज वन सच मैजिकल सब्जेक्ट जिसमें आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। जियोग्राफी हैज डेफिनेट सिलेबस। अगर हम बात करें तो देर आर टू काइंड ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, there are two kind of optional subjects which have vertical depth. Like syllabus is small, span of the syllabus is not very big, but when you talk about the depth of the subject, UPSC asks such questions which require like depth of uh, इट इज लाइक कोई प्रोफेसर जितनी डेप्थ गेन करता है किसी सब्जेक्ट को लेकर के उतना रिक्वायर होता है। लेट्स सपोज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, so it require a lot of depth. On the other hand, other type of optional subjects which are horizontal in nature, like history, it has huge syllabus but it doesn't have that depth. Like geography, it has the huge subject but it is explicit, no hidden thing. So if we talk about the syllabus, geography as in syllabus, it is the detailed syllabus, horizontally expanded, doesn't require that much of depth, and this subject can be covered in 6 months only. अगर 6 महीने आप सिलेबस पर स्टिक होकर के फोकस होकर के पढ़ाई करते हैं, so you can prepare your geography optional in 6 months. I assure you कि 6 महीने में आपका काम हो जाएगा। जियोग्राफी इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में काफ़ी रिमार्केबल रिजल्ट आते हैं। हर साल टॉपर की लिस्ट में 2-3 जियोग्राफी ऑप्शनल से होते ही हैं। टॉप 10 में भी आप देखेंगे तो कम से कम 2 से 3 एस्पिरेंट्स मिल ही जाएंगे जो जियोग्राफी ऑप्शनल से होंगे। ठीक है, रेस्ट सारे ऑप्शनल अच्छे हैं, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप उसे लीजिए। जियोग्राफी के अपने एज हैं, दूसरे सब्जेक्ट के अपने एज हैं, पर जियोग्राफी मीन्स इट इज नॉट लाइक कि आई एम द मेरा ऑप्शनल रहा है और मैं जियोग्राफी का टीचर हूं इसलिए मैं जियोग्राफी को सिर्फ एडवोकेट कर रहा हूं, बट जियोग्राफी आपको नेचर से कनेक्ट करती है, जियोग्राफी आपको रिसोर्सेज से कनेक्ट करती है, और आप देखोगे कि कैसे रिसोर्स को मोबिलाइज करके कल्चर एंड सिविलाइजेशन डेवलप हुई। सो जियोग्राफी पढ़ के आप ओवरऑल सोसाइटी, वेरियस कल्चर्स जो अराउंड द ग्लोब डेवलप हुए हैं उनको देख पाओगे, उनके इंटरकनेक्शन को समझ पाओगे। और एक सिविल सर्वेंट का यही काम है कि हम सोसाइटी के अंडरपिनिंग्स को समझें, कैसे सोसाइटीज इवॉल्व हुई हैं, कैसे कल्चर्स इवॉल्व हुए हैं, उनमें इंटरकनेक्शन क्या है। सो इसको समझ के हम सोसाइटी को बेटर सर्व कर पाते हैं। लाइक यू स्टडी एग्रीकल्चर, बायोजियोग्राफी में आप एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो यू मस्ट बी नोइंग कि हाँ, इफ यू आर पोस्टेड इन मेघालय तो आपको पता है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कौन कौन सी चीजें एग्रीकल्चर में यहाँ पर होती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूपी में केले का जो उत्पादन है, द्वाब रीजन में केले का प्रोडक्शन, बनाना प्रोडक्शन बहुत तेजी से किया जाने लगा, और उससे क्या हुआ कि वाटर टेबल बहुत तेजी से डाउन होने लगा। डीएम वाज वेरी मच अवेयर कि वाटर टेबल की जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि धान की बुआई से पहले ही जो है वो वाटर टेबल खत्म हो जाता था, बहुत सारी जो बोरिंग है, ट्यूबवेल्स हैं, वो सूख चुके थे। तो उन्होंने सबसे पहले यही नोटिस किया कि यहाँ पर बनाना का खेती हो रहा है, इस वजह से वाटर टेबल जो है, तो बनाना के एग्रीकल्चर पे वहां पर रोक लगाई गई, क्योंकि बनाना इज नॉट द एग्रो क्लाइमेटिक क्रॉप इन दैट पर्टिकुलर रीजन, वो कहीं और उगाने के लिए है। चलो, तो what I'm trying to say कि geography is going to help you in a multiple ways। एक सब्जेक्ट के तौर पर सोसाइटी और कंट्री, पूरे वर्ल्ड को समझने में एक आपको मदद करेगा।
और इससे आपको आईआर बहुत बेहतर तरीके से समझ में आता है, क्योंकि इसमें हम आगे देखेंगे तो उसमें आपको आईआर से भी कनेक्शंस स्टैब्लिश होने लगेंगे। हिस्ट्री भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, खासकर वर्ड हिस्ट्री के कनेक्शंस आपको समझ में आएंगे। So that is why I prefer geography as an optional subject. Now let us have a look to the syllabus. If we talk about the geography syllabus, we can divide into three major sections, like physical geography, human geography, human geography, and economic geography. So we can broadly divide it. So दो ऑप्शनल दो पेपर होंगे जियोग्राफी ऑप्शनल में। पेपर वन में आप देख लीजिए क्या क्या है। पेपर वन स्टार्ट्स विद जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब लेट्स सपोज जियोमॉर्फोलॉजी कैसे पढ़ना है हमें, जियोमॉर्फोलॉजी व्हाट शुड बी आवर अप्रोच। सो व्हाइल स्टडीइंग द फिजिकल जियोग्राफी, जब हम फिजिकल जियोग्राफी को पढ़ते हैं तो फिजिकल जियोग्राफी में देयर आर द नेचुरल फिनोमेनास। नेचुरल फिनोमेनास ये तो है फॉर्मेशन, लैंडफॉर्म का बनना, माउंटेन्स या किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर्स का बनना, या साइक्लोन्स का बनना, विंड की मूवमेंट, ये सब क्या है, ये सब फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है। सो इन फिजिकल जियोग्राफी वी स्टडी अबाउट द फिनोमिनन्स, और ये जितने भी फिनोमिनाज हैं ये बिना किसी फोर्स के नहीं होंगे। सो देयर आर द factors and forces. So what you have to do in every phenomena or in every natural incident, whether it is a short term or the long term, what you have to notice about what are those factor and forces due to which this particular phenomena happened, like mountain building जिसको हम ओरोजेनी कहते हैं। So how formation of mountain took place. Fine, let's suppose here this is geomagnetism, how magnetism came in the earth, कैसे काम करता है मैग्नेटिज्म, क्या फैक्टर एंड फोर्सेस हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द फिजिकल जियोग्राफी विच कंप्राइज जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये सब फिजिकल जियोग्राफी में आता है। ठीक है, तो फिजिकल जियोग्राफी में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, योर अप्रोच शुड बी कि हर फिनोमेना में मुझे फैक्टर एंड फोर्सेस को काउंट करते जाना है। ठीक है, वोल्केनो इरप्शन होता है तो व्हाट आर द फैक्टर्स, फोर्सेस बिहाइंड द वोल्केनो इरप्शन, एंड आफ्टर दोज इंसिडेंट्स मींस आफ्टर पर्टिकुलर फैक्टर एंड फोर्सेस कम टुगेदर दे गिव बर्थ टू एन इंसिडेंट, और उस इंसिडेंट के होने के बाद में आफ्टर दैट इंसिडेंट देयर विल बी एन इफेक्ट। वो इंसिडेंट होने के बाद कुछ इफेक्ट होगा, वो किस तरीके का इफेक्ट है, इस इफेक्ट के क्या रिजल्टेंट्स हैं, व्हाट आर दोज रिजल्टेंट्स। तो वो रिजल्टेंट्स आपको दिखाई पड़ेंगे, उस फिनोमेना के रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेंगे ह्यूमन जियोग्राफी पर, इकोनॉमिक जियोग्राफी पर। सो जियोग्राफी की सबसे अच्छी बात है कि द सब्जेक्ट फ्रॉम ए टू जेड इज इंटरकनेक्टेड। एक बार सब्जेक्ट को पढ़ने का अप्रोच आपके अंदर आ गया, नोबडी गोइंग टू स्टॉप यू। सब्जेक्ट को पढ़ने का एक बार तरीका आपको समझ में आ गया, कैसे किस सेक्शन को अप्रोच करेंगे। लेट्स सपोज जियोमॉर्फोलॉजी आपको कैसे पढ़ना है, एक क्लाइमेटोलॉजी कैसे पढ़ना है। हर सेक्शन के अपने कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, दोज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आर ऑन फिंगर टिप। ठीक है, फिंगर टिप पर वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं।
क्लाइमेटोलॉजी के अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, ओशियनोग्राफी के अपने हैं। तो अगर आप उनको समझ लेते हैं तो सब्जेक्ट आपका इंटरकनेक्टेड होता चला जाएगा। और आपको क्या करना है, फिजिकल जियोग्राफी पढ़ते फैक्टर, फोर्सेस, उनके इफेक्ट और उनके रिजल्ट देखते हुए चलना है, काउंट करते हुए चलना है, जॉट डाउन करते। ये इसी तरीके से आपका नोट्स बनेगा। अभी मैं आपको सैंपल में दिखाता हूं कि हम कैसे पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को, कैसे हम ऐसा नोट्स डेवलप करें कि 2-3 दिन पहले भी हम सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाए मेंस में जाने के। गॉट माय पॉइंट? ओके, सो हियर जियोमॉर्फोलॉजी, राइट नाउ मैं अभी माइक्रो एनालिसिस में नहीं जा रहा हूं जियोग्राफी सिलेबस के, सिलेबस आपके सामने है, ठीक है। तो फिजिकल जियोग्राफी में आपको मिलेगा जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में यू स्टडी अबाउट सॉइल, फाइन, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल आर अराउंड द ग्लोब, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, सॉइल इरोजन क्या है, डिग्रेडेशन क्या है, कंजर्वेशन क्या है, what all those factor influencing the word distribution of plants and animals. So you are going to study about the flora and fauna, fine. फ्लोरा और फाना मतलब वेजिटेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। सो इन्वायरमेंटल पार्ट इज गोइंग टू बी कवर्ड। देन देयर इज एन इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। अब आप जरा सोचो, आपको इन्वायरमेंट अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सेप्ट करंट अफेयर्स, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, एनवायरनमेंट आप पढ़ते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ेंगे, इकोलॉजी एनवायरनमेंट भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और आप देख सकते हो प्रीलिम्स में भी अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से आते हैं, फाइन। इन्फ्लुएंस ऑन ऑफ मैन ऑन इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ग्लोबल एंड रीजनल इकोलॉजिकल चेंजेस एंड इम्बैलेंस, इकोसिस्टम एंड देयर मैनेजमेंट, कंजर्वेशन मेथड्स आप पढ़ते ही हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी। ये पूरा का पूरा इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का जो जीएस पेपर 3 में सिलेबस है, वो ही सिलेबस यहाँ पर भी है। तो आप देखिए वो सेक्शन भी आपका कवर हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फाइन। सो पेपर 1 का जो एक सेक्शन होगा उसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, ये फिजिकल जियोग्राफी से होगा, ठीक है। देन इसी पेपर का सेकंड सेक्शन जो होगा उसमें ह्यूमन जियोग्राफी आएगी, पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। अब ह्यूमन जियोग्राफी को आपको कैसे अप्रोच करना है, तो ह्यूमन जियोग्राफी को आपको ऐसे ही देखते जाना है कि हाउ द जियोग्राफिकल events have happened into the history and what kind of impact they made, fine। अगर आप इस अप्रोच से आप देखते हैं ह्यूमन जियोग्राफी को, तो ह्यूमन जियोग्राफी आपको हिस्ट्री के जैसी लगेगी, ठीक है। लाइक ह्यूमन जियोग्राफी में देर आर द वेरियस थियरीज यू हैव टू स्टडी अबाउट, लैंग्वेज, रिलीजन, डेमोग्राफी, सेक्युलरिज्म, ठीक है, कल्चरल reasons of the word, human development indexes, fine, behavioral human geography, fine, human and welfare approaches। तो ये सारी जो थियरीज हैं, डुअलिज्म वगैरह, डायक्टोमी वगैरह, ये सब थियरीज आप पढ़ेंगे। आप जरा सोचिए ये थियरीज आपको कितना काम आएंगी व्हेन यू आर राइटिंग ऐसे ऑन सम काइंड ऑफ कल्चर। अब आप देखिए इस तरीके के ऐसे बहुत आ रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऐसे ऑल्सो। इकोनॉमिक जियोग्राफी, फाइन। सो वर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहां पर आप देखो एक बात आप देखो, आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो, ठीक है, दिस इज अनअवॉइडेबल थिंग, आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक सर्वे, आप जब भी आएगा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे की बहुत सारी चीजें इकोनॉमिक जियोग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, सो एवरीथिंग यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हियर। इकोनॉमिक जियोग्राफी में हम रिसोर्स, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, उनके मोबिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी रिसोर्सेज कौन से, कोल, पेट्रोलियम, गैसेस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इन इकोनॉमिक जियोग्राफी वी स्टडी अबाउट द रिसोर्सेज, जिन रिसोर्सेज को यूज करके ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ रही है, हम उन रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझेंगे। यू जस्ट थिंक अबाउट कि यू आर गोइंग टू स्टडी फूड, न्यूट्रिशन एंड देयर प्रॉब्लम, फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी बिल भी आपको पढ़ना है, पॉलिटी के गवर्नेंस वाले सेक्शन में, वो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा,
ठीक है, यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉज फेमाइन, देयर कॉजेज, इफेक्ट एंड रेमेडीज। फेमाइन से क्वेश्चन मेंस में आ चुका है लिखने के लिए। वर्ड इंडस्ट्रीज, देयर लोकेशन। तो यहाँ पे आप देखो तो जीएस पेपर 1 में लोकेशन, इंडस्ट्रीज के लोकेशन फैक्टर्स के बारे में क्वेश्चन आता है, वो भी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। देन पॉपुलेशन and settlement geography, here you are going to study about the demographic settlements, कैसे शहर या मेट्रोपॉलिटन सिटीज का सेटलमेंट कैसे होता है। डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन, कॉजेज, ठीक है। माइग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, माइग्रेशन के कॉजेज कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, ठीक है, कैसे होता है माइग्रेशन। देयर आर द वेरियस पॉपुलेशन थियरीज विच यू आर गोइंग टू स्टडी हियर। फाइन। सो हायरार्की ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, लाइक अगर हम देखें तो सिमिलर काइंड ऑफ अर्बन सेटलमेंट हमको मिलेगा दिल्ली और मुंबई में, कुछ डिफरेंसेस भी मिलेंगे पर सिमिलैरिटीज भी बहुत सारी मिलेंगी, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट मॉडल डेवलप हो रहा है। सो हम देखेंगे कि किस तरीके का सेटलमेंट्स जो है वो होते हैं, ठीक है। रूरल सेटअप्स कैसे हैं, अर्बन सेटअप्स कैसे हैं, और उसके अकॉर्डिंग में बहुत सारी यहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीम, आपको स्वच्छ भारत मिशन, अर्बन रूरल, ये कैसे काम करता है, तो बहुत सारी स्कीम्स भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देन रीजनल प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग। सो व्हाट इज अ रीजन, रीजन होता क्या है, टाइप ऑफ रीजन एंड मेथड ऑफ रीजनलाइजेशन। फाइन। सो यहाँ पर आपको सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं, दुनिया के तमाम रीजन्स के बारे में, उनके सेटलमेंट्स के बारे में, उनके डेवलपमेंट्स के बारे में यू विल गेट टू नो। And then there will be environmental issues in the various regional planning. फाइन। अर्बन एरिया में रीजनल प्लानिंग में क्या इश्यूज है, रूरल एरियाज में क्या इश्यूज है, एंड हाउ दे आर कनेक्टेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मॉडल एंड थियरीज ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी एक स्पेसिफिक चीज है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे थिंकर्स की थियरीज स्टडी करनी होंगी which is related to the human geography. So if we look at the paper 1 is divided into two sections. First, physical geography. Second one is the human geography. First paper में दो सेक्शन आएंगे, ठीक है। फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इसमें ओशंस के बारे में सब कुछ है, ठीक है। बायो जियोग्राफी, सॉइल, एग्रीकल्चर, इन चीजों के बारे में है। इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, इसमें इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, देयर कंजर्वेशन, इससे रिलेटेड है, ठीक है। देन देयर इज अ ह्यूमन जियोग्राफी, देन जहां पर सब कुछ ह्यूमन के बारे में होगा, देयर पॉपुलेशन, माइग्रेशन, देयर प्रॉब्लम्स, रीजनल प्लानिंग एंड सेटलमेंट्स। देन वी टॉक अबाउट द जियोग्राफी पेपर 2, it is concentrated over India, so similar thing will be there. तो यहाँ पर जियोग्राफी की सबसे खास बात यह है कि पेपर 1 पढ़ने के बाद में पेपर 2 में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती है। पेपर 1 आप पढ़ लेते हैं, आपका 70-75% काम हो गया। दैट मीन्स यहां पर आपको एक पेपर ही अच्छे से तैयार करना है, दूसरा उसके साथ साथ अपने आप तैयार हो जाता है, ठीक है। कुछ आपको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती है, थोड़े बहुत सेक्शन जो है वो आपको अलग से प्रिपेयर करना। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द जियोग्राफी ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी फिजिकल सेटिंग के बारे में, तो जब आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ते हैं तो इंडिया के बारे में काफी कुछ फिजिकल सेटिंग्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली में इसका ड्रेनेज सिस्टम, लाइक माउंटेन बाउंड्रीज, ठीक है, फिजिकल फिजियोजियोग्राफिक रीजन, मैकेनिकल आई मीन मॉनसून पैटर्न कैसा है इंडिया का, साइक्लोन कहाँ कहाँ पर, फ्लड एंड ड्रॉट, क्लाइमेटिक रीजन, नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना, सॉइल टाइप, ये देखते हैं। रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे, जैसे कोल कहाँ पर है, मिनरल्स कहाँ पर हैं, बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। सो वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ते हुए, मतलब फर्स्ट पेपर पढ़ते हुए काफी कुछ इसका कवर कर लेंगे। एग्रीकल्चर, सिमिलरली इंडिया के एग्रीकल्चर को हम स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे, व्हाट इंडिया के एग्रीकल्चर है कैसा, ठीक है, कैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हिस्टोरिकली हुआ है, कॉलोनियल पीरियड में, ब्रिटिश पीरियड में एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़े, और कैसे उन इम्पैक्ट्स को आज हम देखते हैं, उनसे कैसे ओवरकम करने की कोशिश करते हैं,
ठीक है। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर का लाइक इरिगेशन, सीड, फर्टिलाइजर, पावर, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, लैंड होल्डिंग्स लाइक लैंड टेन्योर, एग्रीकल्चर का सब कुछ आप देखेंगे, मिट्टी से लेकर के मींस खेत से लेकर के अनाज के उत्पादन और मार्केट में पहुंचने, दैट मींस एग्रीकल्चर के फॉरवर्ड लिंकेजेस एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, सारे लिंकेजेस। बैकवर्ड लिंकेजेस मतलब उत्पादन से पहले का सारा स्टेज, ठीक है, और फॉरवर्ड लिंकेजेस मतलब उत्पादन के बाद, ठीक है। तो पूरे लिंकेजेस को हम समझेंगे, जैसे मंडी सिस्टम क्या है, एमएसपी क्या है, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर में आएंगी। नॉट ओनली एग्रीकल्चर, इट्स पोल्ट्री ऑल्सो, फिशरी ऑल्सो, देन एग्रो इकोलॉजिकल रीजंस आर देयर, देयर आर 15 एग्रो इकोलॉजिकल रीजंस, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो ओवरऑल एग्रीकल्चर से रिलेटेड लाइफ स्टॉक रिसोर्सेस लाइक पशुपालन, ड्राई फार्मिंग क्या है, एक्वाकल्चर क्या है, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स जैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब कुछ आपका एग्रीकल्चर में कवर होगा, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्रीज, कैसे कहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होती है, तो इंडस्ट्री का एवोल्यूशन कैसे होता है, जैसे कॉटन इंडस्ट्री का एवोल्यूशन का इंडिया में कैसे हुआ, जूट, टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर, पेपर, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, कॉटेज इंडस्ट्री, ये सब कैसे डेवलप हुए, ओवरऑल इंडस्ट्री। अब आप जरा सोचो कितना कुछ आप ऑलरेडी पढ़ ले रहे हो कि आपको जियोग्राफी तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इकोनॉमी में भी बहुत कुछ आपका तैयार हो जाएगा। इंडस्ट्री वाला सेक्शन इकोनॉमी से रिलेटेड है, वो आपका बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, इंडिया के सेंस में रोड, रेलवे, वाटरवेज, एयरवेज, पाइपलाइन एंड मॉडर्न ट्रांसपोर्ट टेक्निक्स जो आ रही हैं, जैसे आप बुलेट ट्रेन देखो, हाइपर लूप, इन सब की क्या संभावनाएं हैं भारत में, प्रोस्पेक्ट्स क्या है वो देखेंगे। कल्चरल सेटिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, यहां से आपको इंडियन सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ने मिलेगा। अब आप इंडियन सोसाइटी के बारे में अलग से जीएस प्रिपेयर नहीं करते हैं जीएस पेपर में, तो भी आपका इंडियन सोसाइटी की बहुत सारी चीजें यहां पर कवर हो जाएंगी। फाइन, लाइक लिंग्विस्टिक एंड एथनिक डाइवर्सिटी इश्यूज क्या है, religious minorities, major tribes, tribal areas and their problem, cultural reason, growth, distribution, density of the population, demographic attributes, sex ratio, age structures, overall इंडिया का जो कल्चरल सेटिंग्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो इंडियन सोसाइटी के बारे में आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी ऑप्शनल के साथ में आपका इंडियन सोसाइटी वाला सेक्शन जो है वो आपका लगभग लगभग प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप कितना बेनिफिशियल सब्जेक्ट है, आपको कितने सेक्शन वो अपने आप कवर कर दे रहा है। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट 6-7 महीने लगेंगे, आप इसको शिद्दत से अगर पढ़ते हैं 6-7 महीने लगेंगे आपको, ये 2 से 3 बार रिवाइज भी हो जाएगा। नोट्स ऐसे डेवलप, अभी मैं आपको दिखाऊंगा नोट्स कैसे डेवलप करने हैं। सेटलमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे हमने वर्ल्ड लेवल पर सेटलमेंट, तो सेटलमेंट की बहुत सारी थियरीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम देख लेंगे, अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट, ठीक है। तो वैसा ही है, आप अगर देखो पेपर 1 पढ़ के ही काफी कुछ कवर हो जा रहा है। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, पिछले पेपर में भी रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग था, उसको पढ़ करके यहाँ का काफी कुछ कवर हो जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जियोग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको काफी कुछ अपने आप में ही प्रिपेयर हो जाएगा। सिलेबस जरूर बड़ा दिखाई पड़ता है, पर हॉरिजॉन्टल है, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है, प्लस सब्जेक्ट आसान है, कॉन्सेप्ट्स मुट्ठी भर है, गिने चुने कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ज्यादा थियरीज नहीं है, थिंकर्स बहुत ज्यादा नहीं है, और पेपर 1 पढ़ के ही 75% सिलेबस कवर, ठीक है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी, ज्योग्राफिकल बेसिक ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, आप जरा सोचो, फेडरलिज्म आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, कैसे लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट आंध्र प्रदेश के बनने से लेकर के, रीजनल कॉन्सिक्वेंसेज एंड इंटरस्टेट इश्यूज, आप जरा देखो, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का काफी कुछ यहां से आपका प्रिपेयर हो रहा है। देन यू विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्पेसिफिक सेक्शन विच इज कंटेम्पररी इश्यूज। सो हियर इन कंटेम्पररी इश्यूज, जैसे आप करंट अफेयर तो पढ़ते हैं, तो जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो बहुत सारे करंट
कंटेम्पररी इश्यूज आपके वहां पे भी तैयार हो रहे होते हैं, वो कंटेम्पररी इश्यूज यहां पर भी काम आ जाएंगे। ठीक है, जैसे इकोलॉजिकल इश्यूज, इन्वायरमेंटल हैजार्ड, लैंडस्लाइड, अभी लैंडस्लाइड से क्वेश्चन आया था इस बार, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड एंड ड्रॉट्स, ठीक है, एपिडेमिक, इश्यूज रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आप जरा सोचो, इसमें जो भी टॉपिक है ये आप करंट अफेयर में साल भर में जरूर पढ़ोगे। ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिफोरेस्टेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, आप देखो कंटेम्पररी इश्यूज आप करंट अफेयर में जो पढ़ेंगे वो आपके यहाँ के लिए ऑलरेडी तैयार होते रहेंगे। ठीक है, तो आप रिपीटिशन नहीं है, यहां पर एक तैयार किया और उससे बहुत सारी चीजें कवर हो गई। ठीक है, तो ये एक अम्ब्रेला है, इसके नीचे सब कुछ आ जा रहा है। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन से आप देखो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, लिंकेज ऑफ रिवर, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये आप पढ़ते ही हो, जीएस में भी पढ़ोगे, यहां पर भी पढ़ लोगे, आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपके अपने आप यहां पर प्रिपेयर हो जाएंगे।